we have like 10 people in the room now. Okay. Great. So a warm welcome to all of you for today's Beyond Classroom session. So today's session is upon how you can use alternative investment opportunities on goal planning, and it is conducted by our volatility coach Ankit Jain. He is based out of Mumbai. Ankit ji actually has done one thing really recently. He has created an insurance card also, and I was very impressed by what he has done. So we will have a session on that one also. But today's session is on uh, majorly alternative investment opportunities and how you can use it on goal planning. So Ankit ji, we can start now. Okay. Welcome everyone. And today we will be starting a small journey towards the Indian financial markets में किस तरह के alternate investment ideas available हैं and how they can help us in curating portfolios of our client in a more efficient way. So let me just start this particular presentation now. I'm just sharing the screen. Is my screen audible? Visible? It is visible, sir. Okay, fair enough. So, yes. So a small disclaimer from my side. I'm also a registered mutual fund distributor and working as a wealth coach. I have done a small one TEDx speech also, and also been a part of volatility coach fraternity since few months now. And I'm also a general mutual fund distributor just like you, and I have been exploring various opportunities in our industry so that I can make my clients' investments more efficient. The returns on their portfolio can be more efficient, and I have been searching various opportunities across the industry. So I will be sharing those opportunities with you guys today. So just a small thing that मैं किसी भी asset class के खिलाफ नहीं हूँ. Mutual fund is still one of the best instrument to invest. Along with that, corporate FDs जो हम traditionally देते आए हैं investors को, वही मेरे हिसाब से भी these are some of the good opportunities which we must continue doing that. Additionally, we can explore these areas also, and उसमें से कुछ चीजों को हम अपने clients के portfolio में भी दे सकते हैं. We can give an exposure to them, to such these opportunities. So just a quick poll लेते हैं just to understand कि मेरा जो audience है आज आप लोग जो हो आप कितने well versed हो about क्या आप ये opportunities जानते हो जो मैं आपके साथ आज discuss करने वाला हूँ. So just give me a second. I'm sharing a poll link with you on our chat box. I'm dropping it. So if you can spare just a second to click on that and let's have a live poll कि आप लोगों ने कितना इसके बारे में सुना है इन opportunities के बारे में. Just a second. I've started the poll. Yes. So based on these votes, we can say that around 50. Okay, there are some more coming up. So I can say that peer-to-peer alternative investment funds, fragment of real estate के बारे में ये group काफी कुछ जानता है. And there are very less people who know about invoice discounting, lease rental discounting, interim finance bonds, structured products. इनके बारे में कम जानकारी है. Fair enough. Fair enough. Thank you everybody for voting out. Now let us move on with the presentation further.
So the first topic is peer-to-peer lending. So peer-to-peer lending basically एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने ट्रेडिशनली बैंक्स, अगर हम बैंकिंग ऑपरेशन समझें, सो व्हेन वी से एक बैंक किस तरीके से ऑपरेट करता है, इट टेक्स मनी, इट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक थ्रू फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, एंड उस फंड्स को वो आगे लेंड कर देते हैं टू वेरियस इंस्टीट्यूशंस, एक टर्म लोन की तरह, या आप लोगों को होम लोन की तरह, या पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, इस तरीके से they distribute the capital raised from the public. So over here what happens is कि आपसे जो भी फंड्स लिए गए, उसके लिए आपको ये नहीं पता कि आपका फंड कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है. So that is where peer-to-peer lending comes into picture. So peer-to-peer lending is just like working एज अ मैनेजर टू यू, जो एग्जैक्टली बैंकिंग का ही काम कर रहा है. जिस तरह बैंक आपका पैसा लेकर लोन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक उसी तरह पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं एंड उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स. सो देयर आर वेरियस पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स. कुछ लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको एक्सेस देते हैं बोरोवर्स खुद चूज करने का, आप खुद पिक कर सकते हो अपने बोरोवर्स अपनी चॉइस के हिसाब से. और कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो आपको एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो आप सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए, वो आपके बिहाफ पे पोर्टफोलियो चॉइस बनाएंगे, पोर्टफोलियो पूल्स बनाएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. So generally we recommend our clients to enter into the second category of P2Ps, where the funds are more managed, because you do not have that expertise of credit scores. You do not have the, as an individual, we do not have the capability or understanding about the fixed income markets. So I believe, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है somebody else might have some other perspective, but what I believe is that peer to peer lending में भी हम जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर पे बिलीफ रखते हैं और उनको अपना फंड्स देते हैं, इक्विटी, डेट, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का, द सिमिलर वे P2Ps कैन ऑल्सो बी मैनेज. देयर आर कंपनीज जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं P2P फंड्स के लिए भी, and they are well managed, and they are able to give you good returns also out of it. So peer-to-peer lendings are generally, these kind of platforms are regulated by Reserve Bank of India themselves, and Reserve Bank of India अपने regular audits करती हैं about whatever they are showing on their platform. किस तरीके से फंड रेज हो रहा है, फंड्स का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से हो रहा है, फंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसी तरह का कोई कट तो नहीं रख रहा है, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की हो जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई रेगुलर ऑडिट्स भी कंडक्ट करता है ऑन P2P प्लेटफॉर्म्स. सिंस P2P बेसिकली 2017-16 से इस इंडियन इंडस्ट्री में अवेलेबल है, एंड इसके काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें लिक्विड लोन्स, लैंडबॉक्स, लेनदेन क्लब, इस तरह की कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं. एंड देयर आर वेरियस कंपनीज जो अनमैनेज, जैसे मैंने बोला कि आप बोरोवर खुद पिक कर सकते हो, जैसे मोनेक्सो, Faircent, and various such kind of platforms are also available. 12% club is again coming into the managed platforms. So generally P2P जो भी फंड्स आपसे लेते हैं, उनका हर कंपनी का अपना डिफाइंड क्राइटेरिया रहता है कि वो किस तरह के लोन्स उसको आगे कन्वर्ट करेंगे उन फंड्स को. देयर आर सर्टेन कंपनीज जो उसको कंज्यूमर लोन्स में कन्वर्ट करती हैं, कुछ कंपनीज है जो उसको पर्सनल लोन्स में कन्वर्ट करती हैं, कुछ कंपनीज है जो उसको टर्म लोन में भी कन्वर्ट करती हैं. सो depending on their own forte and their own ways of understanding, वो उस तरीके से उसको रूट आउट करते हैं. So P2P generally is a vital platform for those जो fixed income segment में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट एफडीज हो गए, या डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हो गए, एंड दे कैन, वो एक तरीके का एक्सपोजर P2P प्लेटफॉर्म्स पे भी ले सकते हैं, जहां आप एक फिक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म, ये P2P प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है, सो आई कैन से दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यूचुअल फंड. जिस तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, ट्रस्ट की मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर भी एक ट्रस्ट होगा, वो ट्रस्ट के अंदर ये P2P प्लेटफॉर्म रन किया जाएगा, फंड्स पूल इन किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास, और इन फंड्स को डिप्लॉय किया जाएगा अलग तरह के लोन्स में, अलग अलग टाइप के लोन पोर्टफोलियोज में. तो जैसे इक्विटी पोर्टफोलियो में डिप्लॉयमेंट होता है, या डेट पोर्टफोलियोज, डेट फंड में डेट पोर्टफोलियोज में डिप्लॉयमेंट होता है, इक्विटी पोर्टफोलियो का इक्विटी फंड्स में डिवाइड होता है पैसा, ठीक उसी तरह in the similar manner over here it is diverse into loan portfolios. तो यहाँ पे जैसे आपने एक
1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो वो ऐसे कुछ पूल्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जहाँ पे बोरोवर्स, कुछ ऐसे पूल ऑफ बोरोवर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जहाँ पे आपका जो रिस्क ऑफ मनी है, जो 1 लाख रुपए डाला है, वो शायद 100 बोरोवर्स, 200 बोरोवर्स में बढ़ जाता है. सो इट इज वेल डाइवर्सिफाइड ऑल्सो at the same point of time. And there are, at the similar time, there are various level of measures taken by the fund managers of these P2P companies जो make sure करते हैं कि सिबिल स्कोर मेंटेन्ड हो, एक फॉयर जिसे फिक्स्ड इनकम ऑब्लिगेशन रेशियो कहा जाता है. एक व्यक्ति अगर एक लोन ले रहा है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है उसको रीपे करने की, उसकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी क्या है, उन चीजों को ध्यान में रख के इस तरह के पैरामीटर्स बिठाए जाते हैं, पैरामीटर्स रखे जाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट्स आगे प्लान किए जाते हैं इसके अंदर. सो P2P इस तरीके से काम करता है. जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, द ओनली थिंग इज आप कह सकते हैं कि जो अंडरलाइन सिक्योरिटी है, जो इक्विटी फंड्स में इक्विटी होती है, डेट म्यूचुअल फंड्स में डेट होता है, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इसके अंदर लोन होता है. So diversification is also done at the similar level, and the fund is managed in that way. So let's have a small look कि P2P जनरली किस तरह के रिटर्न देता है. मैंने एक एग्जांपल लिया है फ्रॉम अ कंपनी, तो आई विल जस्ट शेयर कि ये किस तरीके से आपको कितना रिटर्न ऑफर कर सकता है. So this is a plan from a recognized P2P platform, जिसमें इनका एक फ्लेक्सी प्लान है जिसके अंदर वो आपको 9.5% तक रिटर्न दे रहा है ऑन ए लिक्विड मनी. सो दिस इज लिक्विड, यानी कि जस्ट लाइक लिक्विड म्यूचुअल फंड हम जिस तरीके से किसी क्लाइंट को देते हैं, तो आप इसमें भी आप क्लाइंट्स को दे सकते हो. उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, जितने टाइम तक वो पैसा उसमें रहेगा उतने टाइम उसको 9.5% का रिटर्न मिलेगा. जब भी वो पैसा निकालेगा उसको पूरा पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा. They can do partial withdrawals also. They can, just like mutual fund, जैसे आप partial withdrawal कर सकते हो, आप पूरा पैसा वापस ले सकते हो. The way you want, you can invest in this. There are some fixed term plans also, which will be a great alternative to short term debt funds, long term debt funds, long term income funds, short duration funds, low duration funds, जिसमें आप 3 महीने से लेकर 5 साल तक के ऑप्शन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कम्पेयर जैसे 9.5 दे रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है. इट कैन गो अप टू 10 to 14% तक का पर एनम रिटर्न आपको मिल सकता है. सो दिस इज हाउ जनरली एक P2P अपने रिटर्न्स ऑफर करता है, एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट P2P. if if you have any Q&A, we can take it later on. मैं प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलता हूँ. So the next product is invoice discounting. Invoice discounting ये ट्रेडिशनली सिर्फ बैंक्स के लिए पॉसिबल हो पाता था इन्वेस्टमेंट करना इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर. सो बेसिकली इसमें होता क्या है दैट देयर इज अ कंपनी, एक वेंडर है जो किसी एक कंपनी को कोई से फॉर एग्जांपल अमेजोन को कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है. अमेजोन से उसकी रेगुलर रिलेशनशिप है. मान लीजिए वो 10 लाख का माल अमेजोन पे बेचता है और अमेजोन उसको 30 डेज या 60 डेज के बाद, उसका एक क्रेडिट पीरियड रहता है, 60 डेज के बाद अमेजोन उसको रीपे करता है. सो उस सिचुएशन में जो ये 60 डेज उसके क्रेडिट पीरियड में जो स्पेंड हो रहे हैं, जो टाइम बच रहा है उसका जा रहा है, सो उसको कैपिटलाइज करने के लिए दीज काइंड ऑफ वेंडर्स कम ऑन अवर प्लेटफॉर्म, कम ऑन दीज इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, एंड उसमें आकर वो अपने बिल को डिस्काउंट कर लेते हैं. एंड इन्वेस्टर्स इस प्लेटफॉर्म पे आकर अमेजोन का ये बिल परचेज कर सकते हैं. दे कैन परचेज दीज इनवॉइस डिस्काउंटिंग डील्स, एंड through these deals they can generate revenue out of it. So generally इसमें 12% to 10% to 12% का रिटर्न हम जनरली कहते हैं क्लाइंट्स को कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड द डील्स आर जनरली शॉर्ट टेन्योर, 30 डेज से लेकर 90 डेज 180 डेज तक की टेन्योर इसमें आप पॉसिबिलिटी समझ सकते हैं कि इतना रहेगा. तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज अगेन अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु आर लुकिंग, ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं छोटे टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म फंड्स वगैरह, 3 महीने के लिए पैसा ब्लॉक करना है, 2 महीने के लिए पैसा ब्लॉक करना है, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप पैसा ब्लॉक कर सकते हो और आपको उसके बाद ही किसी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इनवॉइस डिस्काउंटिंग, जहाँ पे आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है. दीज आर ऑल्सो RBI रेगुलेटेड. इसका भी RBI, ये भी RBI से रेगुलेट
किया जाता है। और ये प्रोडक्ट ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इनवॉइस डिस्काउंटिंग में। धीरे धीरे इंडिया में ये प्रोडक्ट भी पॉपुलर होता जा रहा है अमंग्स HNI, सुपर HNIs एंड रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल। एक एग्जांपल इनवर्स डिस्काउंटिंग का मैं आपको देना चाहूंगा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जनरली इनवर्स डिस्काउंटिंग के अंदर। एक प्रोडक्ट होता है, एक डील होती है जिसको कहा जाता है इनवॉइस रेज टू। तो इनवॉइस रेज टू का मतलब ये होता है जो पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्टिकुलर बिल की वो वेंडर की है। तो जब मान लीजिए जैसे ये एक एग्जांपल कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड। सो कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ये बिल जो एक रतन इंडिया की ग्रुप कंपनी है। एंड ये कंपनी का अगर ये एक वेंडर है जिन्होंने रायगढ़ के कोई वेंडर है जिन्होंने ये कोको ब्लू रिटेल को कोई माल सेंड किया होगा, उसी का इनवॉइस के अगेंस्ट पैसा रेस कर रहे हैं। और अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ये इनवॉइस रेस्ड हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वेंडर की है कि 48 डेज के बाद जो भी फंड्स उन्होंने रेस किए हैं वो पैसा उनको लौटाना है। फिर भले ही वो कोको ब्लू रिटेल से लेकर आपको दे या फिर वो खुद इसको रीपे करे, अगर कोको ब्लू रिटेल इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करता है तो। जनरली इन केसेस में अगर किसी तरह का कोई डिले होता है तो उस डिले का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी इनवॉइस रेज टू है यानी कि वो वेंडर, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे हैव टू एंश्योर दैट जो इंटरेस्ट कॉस्ट एडिशनल लग रहा है बियॉन्ड दीज 40 डेज इन केस ऑफ अ डिले, दे हैव टू रीपे दैट। सो जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं 11.5% इज द ग्रॉस यील्ड, यानी एनुअलाइज्ड रिटर्न 11.5% का है, वेयर इन यू कैन से 0.95 के आसपास आपको पर मंथ का रिटर्न इसमें जनरेट हो रहा है। सो इस तरह की डील्स आती हैं। सो इसमें आप पे क्लाइंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर शॉर्ट टेन्योर। एक और इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये एसर का एग्जांपल है। इंटेल टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है जो टेलीविजन सेल करती है और इट्स अ लाइसेंसी फॉर एसर इन इंडिया। So again, now over here it is mentioned invoice raised for and recourse on. इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, एसर की है, इनकेल टेक्नोलॉजीज की है टू एंश्योर कि ये बिल का पेमेंट रीपेमेंट किया जाए। रेदर देन इस केस के अंदर वो इनवॉइस रेस्ड टू था, यहाँ पे वो इनवॉइस रेस्ड फॉर एंड रिकोर्स ऑन है। यानी यहाँ पे जब कोई ऐसा कुछ इनवॉइस के ऊपर मेंशन्ड होगा दैट मींस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसर की है, इनकेल टेक्नोलॉजीज की है रीपे करने की। अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे आप देखेंगे 13.5% इज द यील्ड एंड दिस पर्टिकुलर पेपर इज फॉर 89 डेज। सो 89 डेज तक ये पेपर अवेलेबल है। आप इस पेपर को अगर परचेज इस बिल को अगर आप परचेज करते हो 89 डेज बाद आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाएगा along with interest. So this is how invoice discounting works. इसके कई डील वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर। ये काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म, काफी बेहतरीन ऑप्शन है फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू पार्क शॉर्ट टर्म मनी, से फॉर 3 months, 1 month, 2 months। सो इसमें 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मैक्सिमम मैंने आज तक देखा है 180 डेज शायद इक्के दुक्के कोई भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग पेपर आए होंगे। अदरवाइज जनरली इट इज बिटवीन 3 months, 1 month to 3 months. So this is how the whole invoice discounting mechanism works. Moving forward, lease rental discounting. So ये एक अलग प्लेटफॉर्म, ये एक अलग प्रोडक्ट है जिसे सेबी के डेफिनेशन के मुताबिक ये होते हैं सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये जो एलआरडीज होते हैं इसमें जब आपको इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो ऑलरेडी लीज पे दिया गया है आगे, और वो लीज से जो रिटर्न आ रहा है, वो जो लीज रिकवरी हो रही है, जो लीज आप पेमेंट हो रहा है वो इंस्टेड ऑफ टू द ओनर वो पैसा आपको मिल जाएगा। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल विद यू कि जैसे मान लीजिए कोई एक मशीन है जिसको लीज पे दिया गया है कहीं पे ऑपरेट करने के लिए। तो वहां से अगर कोई पैसा, मान लीजिए उस मशीन की लीज है 40,000 रुपीज पर मंथ। तो वो जो मशीन मैंने जहाँ पे भी लगाई है, से फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, या वो मान लीजिए एक हेल्थ केयर यूनिट है, एक हेल्थ केयर यूनिट है और उसको हमने किसी हेल्थ केयर कंपनी को दिया है ऑपरेट करने के लिए, किसी एक फलाना XYZ कंपनी ने। तो दैट XYZ कंपनी कैन डिस्काउंट दिस लीज इन
LRD प्लेटफॉर्म्स या फिर एक इन्वेस्टर के पास कि भाई मुझे यहाँ से 40,000 रुपीज पर मंथ पैसा आने वाला है, वो पैसा आप रख लो, आप मुझे एक लमसम पैसा दे दो, और 40,000 रुपीज पर मंथ आपके पास आता रहेगा। एट द एंड ऑफ द लीज आप वो पैसे मुझसे वापस ले लेना। सो दिस इज हाउ दी LRD, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग वर्क्स। और इसको सेबी के अंडर, सेबी के अंदर रेगुलेट करने के लिए एक सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में इसको दिया जाता है। ये एक तरीके का डिबेंचर होता है, एक डिबेंचर इसका बनाया जाता है, और ये उसके सामने आपको लीज का जो भी फंड्स हैं वो आपको उस डिबेंचर के अंदर एज एन इनकम आते हैं। सो अ स्मॉल, दीज आर आल्सो सेबी रेगुलेटेड, और इसके भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको LRD में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। Let's take a small example of LRD as well over here. So ये एक एग्जांपल है लीजेक्स का शील्ड ATM 36। ये एक AGS टेक्नोलॉजीज, अगर आप कभी ATM गए हो तो काफी सारे बैंक्स के ATM AGS का ATMs यूज करते हैं। AGS बेसिकली एक ATM बनाने वाली कंपनी है, और वो भी अलग अलग लोगों को लीज पे देती है ये ATM मशीन्स। सो इस ATM मशीन कंपनीज को, बैंक्स को भी लीज पे देती हैं। तो ये जो ATM मशीन है, इससे जो रेवेन्यू आता है, जो लीज आ रही है, वो लीज को यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके उस लीज में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। सो आप जैसे देखेंगे इसके अंदर द रेट ऑफ रिटर्न इज अराउंड 11%। 32 मंथ्स की ये लीज है, और देर आर वेरियस, इसमें जैसे आप देखेंगे 2,64,744 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। तो क्वार्टरली आपको पेमेंट आता है लीज का। तो इस तरीके से ये भी डीमैट फॉर्म में रहता है, जैसे मैंने बताया डिबेंचर फॉर्मेट में रहेंगे, ये डीमैट में आपके स्टोर हो जाएंगे, एंड आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट FDs या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी रेटेड होते हैं, इसमें भी आपको रेटिंग मिलती है, जैसे इसमें A+ की रेटिंग है, जिसमें आपको 11% का IRR मिल रहा है। सो इस तरीके के डील्स अवेलेबल होते हैं, तो आप इसमें भी सोच सकते हैं। अगर किसी तरीके का एक्सपोजर किसी क्लाइंट को देना हो तो LRDs भी एक ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, secondary bonds and debentures. Secondary bonds and debentures are again a platform जिसमें आप इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेट फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड में जब हमको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देर आर अपॉर्चुनिटीज लाइक, किसी GSEC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है अगर हम एक लॉन्ग टर्म इनकम फंड लेते हैं, बॉन्ड फंड लेते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट लो ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड लेते हैं तो कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिमिलरली ये जो बॉन्ड्स परचेजिंग वगैरह होती है, ये आप सेकेंडरी मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। प्राइमरी होता है जो पब्लिक इशू ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो हम रेगुलरली करते हैं, जैसे ईडलवाइस का आता है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का आता है। ऐसे कई और पेपर्स भी मार्केट में आते हैं जो इंस्टीट्यूशंस परचेज करती हैं, जैसे UPPCL प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड्स होते हैं। वो लिस्टेड होते हैं लेकिन वो प्राइवेटली प्लेस होते हैं, पब्लिकली प्लेस नहीं होते। पब्लिक के पास वो पेपर में सब्सक्राइब करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो उस तरह के प्राइवेटली प्लेस्ड बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू सेकेंडरी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रूट। इसके अंदर आप जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कॉर्पोरेट डिबेंचर्स होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स जो पब्लिकली इशू नहीं होते, प्राइवेटली प्लेस हो जाते किसी इंस्टीट्यूशन को, वो रीसेल कर देते, तो वो उस तरह के पेपर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूजिंग दी सेकेंडरी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स रूट। सो इसके भी कई बड़े बड़े लीड मैनेजर्स होते हैं जिसमें जिनके थ्रू आप टाइप करके उनके थ्रू पेपर सोर्स करके अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। सो a very small example in how the mechanism works of secondary bonds and debentures मैं आपको बताता हूँ। ये एक एग्जांपल है जो इसका देखेंगे आप, एक ISIN नंबर भी मेंशन है। ये जो पेपर है ये है, ये देखिए 9.620% जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस इज द कूपन ऑफ दैट पेपर। AP आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेट लिमिटेड, दिस इज द कंपनी नेम, द इशुअर नेम जिसने ये बॉन्ड इशू किया है। 28 नवंबर 2031 बेसिकली ये है उसकी मेच्योरिटी। 28 नवंबर 2031 में ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा।
डील डेट यानी मान लीजिए जिस दिन मैं ये डील को कर रहा हूँ, से ये मैंने एग्जांपल के लिए 5th ऑफ जुलाई 2023 का एक डील डेट लिया है। वैल्यू डेट सेम डे अगर मैं उसको ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू डेट भी 5 जुलाई 2023 हो जाएगी। क्वांटम यहाँ पे आपको ये जो पेपर्स होते हैं 10 लाख में, 5 लाख में, 2 लाख में अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेपर टू पेपर उनके रेट्स डिफाइंड होते हैं, क्वांटम डिफाइंड होते हैं। क्वांटम बेसिकली ये होता है कि आप कितना पैसा इंटेंट कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, तो वो अमाउंट आप यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद आता है प्राइस। सो जैसे आप शेयर मार्केट में हर एक शेयर की एक वैल्यू होती है, ठीक उसी तरह हर एक आईएसआई की या हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी वैल्यू है। सो यहाँ पे जैसे इसकी मार्केट वैल्यू है 101.60, सो दिस इज द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड on 5th of July 2023. After that comes the YTM. YTM आता है 9.65। सिंस आप अगर देखेंगे ये 100 नहीं, ये एट प्रीमियम बिक रहा है तो 101.60 है, तो इसका YTM अलग आएगा एज कंपेयर टू द कूपन। सो 9.6575% का इसका YTM है। लास्ट आईपी डेट, तो लास्ट आईपी डेट का मतलब होता है ये लास्ट इंटरेस्ट कब पे हुआ था इस बॉन्ड से। सो 31 मई 2023 वाज द लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सो वहां से 35 डेज हो चुके हैं इस बॉन्ड को इंटरेस्ट दिए हुए। सो नेचुरली अगर आप ये परचेज आप 5 जुलाई को अगर किस प्लेटफॉर्म से परचेज कर रहे हो इस बॉन्ड को, सो 35 डेज का इंटरेस्ट आपको रीपे करना होगा प्रीवियस बायर को जिससे आप ये बॉन्ड परचेज कर रहे हो। So you have to pay 35 days का interest as per 9.62% आपको पे करने को आएगा। तो so the accrued interest is mentioned over here as 9,224। Naturally ये पैसा इसके next interest payment date पे आपको रिसीव हो जाएगा in totality, क्योंकि जो डिबेंचर मैकेनिज्म है उसमें जो डीमैट जिस डीमैट में ये पर्टिकुलर बॉन्ड होगा उस डीमैट को इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट डेट। सो ये जो 35 डेज का इंटरेस्ट है वो आप उसको रीपे कर रहे हो और नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट पे आपको फंड्स रिसीव हो जाएंगे। द प्रिंसिपल अमाउंट बिकॉज द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 101.60, सो 10 लाख का बॉन्ड आपको 10,16,000 में पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आप एक इंटरेस्ट इसमें ऐड करोगे एंड द टोटल कंसिडरेशन विल बिकम 10,25,224। अच्छा, इसका जो परचेज मैकेनिज्म होता है आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो, तो जो भी आप जिस लीड मैनेजर के साथ ये इस पेपर को सोर्स कर रहे हो उस लीड मैनेजर के साथ आपकी ये डील रजिस्टर होगी आईसीसीएल पे। आईसीसीएल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक बीएससी की सब्सिडरी है, और ये डील्स जो भी ऑनर होती हैं इस थ्रू आईसीसीएल प्लेटफॉर्म। आईसीसीएल का अपना एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है। आप जो फंड्स भेजोगे वो आईसीसीएल के अकाउंट में भेजोगे, ना कि अपने लीड मैनेजर के अकाउंट में। सो आपके जो इन्वेस्टर होंगे उनका पेमेंट जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आईसीसीएल के अकाउंट में, और जब वो फंड रिसीव होगा तब आईसीसीएल इंस्ट्रक्ट करेगा लीड मैनेजर को डिबेंचर आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। जनरली ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सिंगल डे में क्लियर होता है। आपको पेमेंट करना होता है ऑन द सेम डे, जिस दिन आपने पेमेंट किया उसी दिन ये डिबेंचर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उस दिन से ये इंटरेस्ट, इसमें जो भी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उसका उसका बेनिफिट आपको मिलता है। सो दिस इज हाउ द सेकेंडरी डिबेंचर्स मार्केट वर्क, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इसमें हर तरीके के बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। आप पीएसयू बॉन्ड बोल लीजिए, अगर आपको किसी स्टेट बैंक अपने पीएसयू बैंक्स का अगर आपको लेना है, पीएसयू कंपनीज का अगर आपको बॉन्ड परचेज करना है, जितने बॉन्ड्स आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, आप उसके फैक्ट शीट के अंदर जो प्रोडक्ट्स देखते हैं उन सभी प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू दीज सेकेंडरी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। काफी सारे क्लाइंट इसका बेनिफिट लेते हैं, काफी सारे एचएनआई सुपर एचएनआई क्लाइंट इसका बेनिफिट लेते हैं। देयर आर वेरियस। अच्छा, इसका दूसरा बेनिफिट ये आता है, ये जैसे आपने ट्रेड करके इसको परचेज किया है, ये लिक्विड भी वैसे ही रहता है, आप इसको ट्रेड करके सेल भी कर सकते हो। आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलकर उस आईएसआई को रजिस्टर करा के वहीं के वहीं उसको सेल ऑफ भी कर सकते हो अगर कोई बायर अवेलेबल है तो। So this particular paper is also tradable as well as जिस तरीके से आप इसको ट्रेड करके परचेस कर रहे हो आप इसको बेच भी सकते हो at any given point of time। इसके अंदर दो सिचुएशंस होती है आज की तारीख में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज हम एक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में करंटली है,
जहाँ पे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे। तो एज वी ऑल नो, इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही नीचे जाते हैं बॉन्ड प्राइसेस स्टार्ट गोइंग अप। तो आज अगर ये 101.60 में हमें ये पेपर मिल रहा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे, तो हो सकता है यू कैन अर्न अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज ओवर एंड अबाउट वॉट एवर यू हैव पेड। तो 101.60 की जगह हो सकता है 102.60 में भी बिक जाए। सो द क्लाइंट इज गोइंग टू मेक एडिशनल मनी ओवर एंड अबाउट दैट, प्लस 9.62% का जो कूपन आपको मिल रहा है वो तो आपको मिलेगा ही। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सेल इट ऑफ आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर ऑल्सो। तो ये उस तरीके से वर्क करता है। तो जो हमने हमेशा सुना है, bond prices go up when interest rates go down, interest rates go up तो bond prices go down, ये वाला मैकेनिज्म जनरली इस मार्केट में सबसे ज्यादा काम करता है। सो एज ऑन डेट हम काफी क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं इस तरह के पेपर्स में इन्वेस्ट करना, अगर मतलब इस तरह के या सिमिलर कैटेगरी के। तो you can also explore this market as well for your clients if the clients are ready to take a direct exposure। जैसे हम डायरेक्ट इक्विटी परचेज करते हैं, हम डायरेक्ट डिबेंचर परचेज कर सकते हैं going beyond mutual funds। The next paper, the next product is interim finance bonds। So interim finance bonds generally NCLTs या IB कह सकते हैं आप इसको, जो आपकी डेट रिकवरी ब्यूरो है, उसके उसके थ्रू ये बॉन्ड्स परचेज किए जाते हैं। सो जनरली इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी, और वो कंपनी लिक्विडेशन में गई हुई है। एक कंपनी को 180 डेज का टाइम मिलता है अपना एक लिक्विडेशन रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए। ये कंपनी ऑलरेडी डिफॉल्ट कर चुकी है। अब वो कंपनी का जो एनसीएलटी में ट्रिब्यूनल में जो बैंकरप्सी आई, जो अपनी बैंकरप्सी के अंदर वो जा चुकी है, तो उसको एक रेजोल्यूशन प्लान देना होता है, सबमिट करना होता है। अगर वो नहीं कर पाती है देन इन दैट केस उस कंपनी का लिक्विडेशन करके उसको खत्म कर दिया जाता है। पर जब तक उसको एक जो वेटिंग पीरियड मिला है 180 डेज का, या एक एक्सटेंशन के साथ 90 डेज, यानी अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 9 मंथ्स का टाइम मिलता है कि आप इसके अंडर एक रेजोल्यूशन प्लान लेके आ सकते हो, किसी फाइनेंसर को लेके आ सकते हो, या कोई एक इन्वेस्टर लेके आ सकते हो जो अपने आपकी जो ये बैंक जो कंपनी डूब चुकी है उसको फाइनेंस करके वापस से खड़ी कर सके। तो वो जो टाइम रहता है वो टाइम फ्रेम के अंदर आप फंड्स निकाल नहीं सकते अपनी इस कंपनी से, जो भी आपके एसेट्स हैं इस कंपनी के अंदर वो बेच नहीं सकते। तो जब तक, लेकिन इस कंपनी को रन करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा। इस कंपनी के कुछ माइनर एम्प्लॉयज होंगे, जो अकाउंट्स टीम होती है, जो स्पेसिफिक टीम है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है लेकिन जो स्पेसिफिक टीम है उसको मेंटेन करने के लिए आपको फंड्स लगेंगे। सो उस फंड्स को फाइनेंस करने के लिए इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स होते हैं। तो इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स का बेसिकली काम ये होता है, जो कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं उन कंपनीज को फाइनेंस करना फॉर द लाइफ ऑफ टू कीप दैट कंपनी लाइव टिल द वेटिंग पीरियड इज ओवर। तो जब तक वो वेटिंग पीरियड ओवर नहीं होता जो 9 मंथ्स का एनसीएलटी ने दिया है, उस टाइम तक इस कंपनी में जो भी एक्स्ट्रा इनको ऑपरेशन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड प्रोवाइड करता है। प्लस इसके बाद जब ये लिक्विडेशन हो जाता है, इसमें या तो कंपनी के पास फाइनेंसर आ चुका है या तो फाइनेंसर नहीं आया है। अगर कोई इन्वेस्टर या फाइनेंसर नहीं आया, इस कंपनी को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करना है, देन इन दैट केस अगेन लिक्विडेशन प्रोसेस जितने टाइम तक रहेगा तब तक वो इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड को पेमेंट मिलता रहेगा, बिकॉज दे हैव सपोर्टेड द कंपनी टिल द इन द टाइम वेयर दे डोंट हैव फंड्स। अब पॉइंट ये आता है कि एक ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट क्यों करें जो बैंकरप्ट हो चुकी है, जिस कंपनी के पास पैसा है ही नहीं। तो हम इसलिए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि दीज बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड टू बी द सुपर सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सो आइडियली इस सिचुएशन में ये होगा कि जब ये कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या इस कंपनी को अगर कोई फाइनेंसर मिलता है या इन्वेस्टर मिलता है, जब वो फंड्स दिए जाएंगे, उस सिचुएशन में जो सबसे पहला पेमेंट अगर कंपनी करेगी दैट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स। सबसे पहले इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड इज द क्रेडिटर टू द कंपनी। नो डिबेंचर्स, नो डिबेंचर होल्डर्स, नो क्रेडिटर्स, नो बैंकर्स, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करने से पहले इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स को पेमेंट किया जाएगा। So they are considered as per the NCLT law, as per the IB,
इस इन बॉन्ड्स को सबसे पहले रीपे किया जाता है। सो अगेन इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स कि ऐसे किसी एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जहां पे आपको एक सुपर सिक्योरिटी मिल रही है कि हर किसी, ये लिक्विडेशन जब भी होगा या जब भी इसको इन्वेस्टर या एक फाइनेंसर मिलेगा, उस सिचुएशन में जो सबसे पहली फंडिंग होगी, जो सबसे पहला वो फंड रिलीज होगा, दैट इज गोइंग टू बी गोइंग टुवर्ड्स द इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स। सो इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है इंटरिम फाइनेंस बॉन्ड्स का। सो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो स्मॉल अमाउंट का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा पैसा इसी में लगा दो, बट it's a flavor. If your client is looking out for an investment opportunity, they can definitely invest in this particular platform. And interim finance bonds generally interest आपको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। They generally provide you 12%, 13%, 14% तक इंटरेस्ट जाता है। So again, अगर आपको एक ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है आपके क्लाइंट को, they can expose their some of their money on this in this platform as well. इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 10,000 से शुरू होता है, तो इट इज नॉट कि आपको बहुत बड़ा पैसा लगाना है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके कोई इन्वेस्टर है तो वो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट, structured products, market linked debentures. This is as per the poll में अगर बोलूंगा तो ये one of the most पोल के मुताबिक बहुत कम लोग जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। सो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कंसेप्ट बताता हूँ एंड हाउ यू कैन यूज दिस in goal planning also of your investor or financial planning of your investors. So structured products basically एक market से linked debentures होते हैं। ये भी एक debenture format में ही आता है आपके डीमैट में, लेकिन ये होता है लिंक्ड किसी ना किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी का, जैसे निफ्टी हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। उनके परफॉर्मेंस से लिंक ये डिवेंचर होता है और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है। सो जनरली मैं अगर इसको एकदम स्ट्रक्चरली बोलूं तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें पैसा आपका जो इन्वेस्ट होता है, उस पैसे को ये लोग यूज करते हैं टू फाइनेंस अ पर्टिकुलर एंटिटी, at the same point of time use that money to purchase some kind of call and put structures of call and put, and उसके थ्रू जो स्टॉक ऑप्शंस होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके आपको ये रिटर्न्स निकाल के देते हैं। सो इट इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट आज ही आपको पता है कि अगर एक आपके अंडरलाइन सिक्योरिटी का जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपको कितना रिटर्न जनरेट होगा। To give you a proper idea about the performance of these kind of market linked debentures, let me share an example with you. So ये एक प्रोडक्ट है जो निफ्टी को अंडरलाइन सिक्योरिटी बना के चल रहा है। सो इसका जो रिटर्न है वो निफ्टी के लेवल्स के बेसिस पे डिफाइन होगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट में जब आपने इन्वेस्ट किया है, द निफ्टी लेवल वाज एट 18,000। तो 18,000 निफ्टी का लेवल था उस समय। अगर आपने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपीज, गोइंग फॉरवर्ड अगर मान लीजिए निफ्टी यहाँ से 18,000 से फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट इज फॉर 3.5 years। सो 3.5 साल बाद इस प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए द निफ्टी लेवल्स वर एट 16,200। निफ्टी का जो लेवल था 3.5 साल बाद आया 16,200। मार्केट 10% से नीचे है। तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनाया गया है कि इस प्रोडक्ट में आपको वो कह रहा है कि मार्केट कितना भी नीचे चला जाए हम आपको 6% पर एनम का रिटर्न देंगे। दैट मींस 22.69% फॉर नेक्स्ट सिंपल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड 22.69% फॉर 3.5 years। सो 10% हो, 25% हो या 50% मार्केट गिर जाए, मैं आपको 22.69% या आपको सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 6% पर एनम के हिसाब से रिटर्न जनरेट हो रहा है। अब अगर ऊपर गया तो सो जब तक ये 22.69% को टच नहीं करता है, जब तक निफ्टी अगर 10% का रिटर्न देगा तब भी ये प्रोडक्ट आपको 6% पर एनम का रिटर्न दे रहा है। अगर निफ्टी 25% का रिटर्न जनरेट करता है तो जो भी मार्केट का रिटर्न होगा वो रिटर्न ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेगा। यानी कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा, अगर ये 18,000 का मार्केट 3.5 साल के अंदर 27,000 का हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपको
50% का रिटर्न एब्सोल्यूट, ये भी आपका लाख का 1.5 लाख रुपया कर देगा, एंड 12.25% का रिटर्न आपको। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट नीचे है तो मेरा पैसा प्रोटेक्टेड है, मुझे 6% पर एनम का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस शुरू कर दी, जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, तो मुझे जो मार्केट का रिटर्न है वही मार्केट का रिटर्न मुझे भी मिल रहा है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप जिस ऐसे क्लाइंट्स को दे सकते हो जो लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मालूम नेक्स्ट 3 साल 3.5 साल कैसे रहने वाले हैं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक इंडेक्स फंड का आप कह सकते हैं रेप्लिका है, जहां पे ऊपर जा रहा है तो पूरा रिटर्न आपका, नीचे गया तो भी आप मिनिमम 6 टका कमा रहे हो, यू आर नॉट एट रिस्क एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे क्लाइंट्स को आप इस तरह का प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसमें कई तरह के वेरिएशन होते हैं, ये एक वेरिएशन मैंने आपको बताया। इसमें कई तरह के वेरिएशन होंगे, जिसमें आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई क्लाइंट होगा जिसको मार्केट से डबल पैसा चाहिए, तो उस तरह का स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जा सकता है, जहाँ पे शायद मार्केट अगर 10 टका दे रहा है तो वो आपको 20 टका रिटर्न दे रहा हो, पर उस सिचुएशन में वो डाउन साइड में आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा। इस तरह के परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर आल्सो रियली वेरी अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं लेकिन मार्केट का रिस्क लेने के से डर रहे हैं, तो उन क्लाइंट्स को आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं कि भैया आपने एक इंडेक्स फंड ही ले लिया एक तरीके का, जिसमें जितना मार्केट रिटर्न देगा उतना रिटर्न आपका होगा, लेकिन अगर डाउन साइड है तब भी मैं आपको मिनिमम 6% का रिटर्न डिलीवर करके दे रहा हूँ। सो इट इज अ वेरी फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर दोस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। इसमें आप अलग अलग टाइप के आते हैं, कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे मैंने आपको एक ये प्रोडक्ट बता दिया। इसमें कुछ एग्रेसिव प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिसमें डाउन साइड पर रिस्क आपका रहता है लेकिन अपसाइड रिटर्न्स आपको काफी अच्छे मिलते हैं, यू कैन क्रिएट अल्फा फ्रॉम डे वन ऑल्सो। So such kind of products are available in the structured product industry. You can definitely explore these. So these products are generally prepared by many companies available in the market. तो आप इस टाइप के प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, अनलिस्टेड शेयर्स, तो ये आज पिछले कुछ दिनों से तो काफी ज्यादा फेमस है, आपने न्यूज में भी सुना होगा। जैसे रिलायंस रिटेल ने अपने अनलिस्टेड शेयर होल्डर्स के लिए शेयर कैंसिलेशन के लिए डाल दिया है कि भाई जिन लोग जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स हैं हम उनको वापस दे देंगे। सो इस तरह के जो ये अनलिस्टेड शेयर स्पेस है, ये भी कुछ सालों से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। इसमें भी कई क्लाइंट्स इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेते हैं उन कंपनीज में जो अभी तक लिस्ट हुई नहीं है बट आर वेरी मच केपेबल इनफ टू बी लिस्टेड। इसके फ्यू एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, जैसे रिलायंस रिटेल था, या करलॉन एंटरप्राइजेस जो अब शीला फोम्स के अंदर मर्ज होने वाला है, या फिर टाटा टेक्नोलॉजीज इसका आईपीओ आने वाला है। ये सब पहले अनलिस्टेड शेयर स्पेस में काफी सालों से अवेलेबल थे। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। आप अनलिस्टेड शेयर्स को अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो यू विल गेट many websites offering these kind of products। उसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और काफी सारी कंपनीज होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, दिस रिक्वायर स्टडी। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसमें आप आए आपने लिस्ट देख ली और उसमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा के परचेज कर लिया। यू नीड अ थरो स्टडी। अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड के जानकार हैं, अगर आपको लगता है कि आप कोई शेयर को स्टडी प्रॉपर्ली कर सकते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री एज वेल, दिस इन्वेस्टमेंट आइडिया एज वेल, एंड प्लान सम गुड इन्वेस्टमेंट्स फॉर योर क्लाइंट, जहाँ आप उनको एक अनलिस्टेड स्पेस में एक्सपोजर दे रहे हैं, वेयर हो सकता है वो आपके क्लाइंट्स के लिए काफी फ्रूटफुल बन सके। सो अनलिस्टेड शेयर स्पेस इज आल्सो वेरी लुक्रेटिव एरिया, जहाँ पे थोड़ी स्टडी लगती है। अगर आपकी स्टडी अच्छी है, आप एक एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, अगर शेयर्स को स्टडी करने में, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हो सकता है कुछ वैल्यू प्रोडक्ट्स मिल जाए, कुछ ऐसे वैल्यू शेयर्स मिल जाए जिसमें आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिल सकती है, एंड इट कैन गिव यू 2x 3x 4x 10x रिटर्न्स आल्सो। टॉकिंग अबाउट द 10x 2x 3x रिटर्न, तो मैं एक और सेगमेंट को नहीं भूल सकता, स्टार्टअप। सो स्टार्टअप इक्विटी भी एक इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिस आज की तारीख में काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे स्टार्टअप्स जो शायद मार्केट में आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पर इन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, तो आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपके क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट उसमें करवा सकते हो विद स्मॉल अमाउंट्स, 1 लाख 2 लाख रुपए। क्योंकि जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो जनरली अगर मैं एक वीसी फर्म के पास जाऊंगा तो वो कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए मांगेगा मुझसे, कई बार 10 करोड़ भी हो सकता है। सो यू पर्सनली एज एन इन्वेस्टर, और यू कैन हेल्प योर इन्वेस्टर्स
to go through these, there are various kind of platforms available in the market जिसके थ्रू आप स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अगेन इट रिक्वायर्स, जैसे मैंने बोला, अनलिस्टेड शेयर्स में जिस तरीके की एक्सपर्टीज चाहिए, सिमिलर एक्सपर्टीज आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए भी चाहिएगी. यू नीड टू बी वेरी मच वेल वर्स अबाउट द मार्केट सिनेरियोज, अबाउट द स्टार्टअप. आप उतने केपेबल अगर हैं तो आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हो स्टार्टअप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का. ये जो स्टार्टअप इक्विटी इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो रिटर्न जनरेट होते हैं, दैट कैन बी स्काई इज द लिमिट. इट कैन बी 5x, 10x, 20x. हमने देखा है कई क्लाइंट्स को 30x रिटर्न कमाते हुए भी. सो बट इट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज. आप कितने एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, कितना आप समझते हैं इस मार्केट को, एंड देन definitely you can explore this space as well. Talking about the next product, alternate investment funds. काफी सारे लोग इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, फेमिलियर हैं इस प्रोडक्ट के बारे में. मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट शेयर करूंगा. सो alternate investment funds is basically an area जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी स्पेस में भी कर सकते हो, डेट स्पेस में भी कर सकते हो, ये एक मेज़ेनाइन में भी जा सकते हैं. सो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है इसमें इन्वेस्ट करने की, जहाँ पे आप शायद एक वेरियस टाइप ऑफ फंड मैनेजर, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वैसे ही एआईएफ्स भी होते हैं. दे गिव यू वेरियस क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज, जहाँ हो सकता है वो किसी सीरीज जी में इन्वेस्ट कर रहा हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है वो कोई अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट कर रहा हो. ऐसे भी एप्स हो सकते हैं जो टोल टोल बूथ्स वगैरह को फंड करते हैं, वहां से एक रेगुलर फंड्स वर्क फ्लोज, कैश फ्लोज निकाल लेते हैं. So there are various opportunities. So these AIFs generally are a minimum investment product of 1 crore to 2 crore, 5 crore. But ये आपके सुपर HNI क्लाइंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बिकॉज जैसे एक अनलिस्टेड शेयर स्पेस में आपकी अगर एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन आपके पास एक बड़ा इन्वेस्टर है, तो आप AIFs के पास जा सकते हो. उनके फंड मैनेजर्स, उनके जो जिस तरीके से हम शेयर्स में इन्वेस्ट करने वालों के लिए म्यूचुअल फंड देते हैं कि भाई मेरी शेयर में एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन मैं एक फंड मैनेजर को जानता हूँ फलाना फलाना कंपनी का जो एक अच्छा फंड मैनेजमेंट करता है, तो हम जैसे म्यूचुअल फंड को रेकमेंड करते हैं. Similarly, AIFs can be recommended to super HNI clients who are willing to invest in startup ecosystem or unlisted share space or various other debt opportunities जहां उनको रिटर्न अच्छा मिल सकता है. So AIFs हर तरीके के AIFs होते हैं, डेट भी होते हैं, इक्विटी भी होते हैं इन वेरियस एरियाज. तो अगर आपका कोई क्लाइंट है, कोई सुपर एचएनआई क्लाइंट है who want to take an exposure of something different than what mutual funds invest into, then definitely you can have a portfolio invested in this as well. Again, this product AIFs are generally only and only for those investors जिनका 10 करोड़ 25 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो आप एक 5% 10% का इसमें एक एक्सपोजर ले सकते हैं. And again, there are various AIFs available in the market. This is somewhat different to PMS. अगर आप इसको PMS के साथ कंपेयर को, PMS is completely different. PMS में जब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, that is purely into shares. वो सिक्योरिटीज आपके लिस्टेड शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. AIF is mainly for unlisted shares, startups, and various other alternate asset classes. So don't confuse it with PMS. PMS is completely different. AIFs are completely different. Moving to the last product of this particular session, fragments of real estate. ये भी एक ऐसा एरिया है जिसमें लोग अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स. सो ऐसे इन्वेस्टर्स, आप अगर आज इंडिया मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोचें, तो जनरली इट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट व्हाट यू नीड इन योर हैंड इज अराउंड 1 करोड़ 1.5 करोड़ काइंड ऑफ. एंड उस पे जो आपको रेंटल यील्ड आती है, दैट इज आल्सो वेरी लेस, अराउंड 2 to 3% इन इंडिया एटलीस्ट. सॉरी, इन मुंबई एटलीस्ट. मे बी हो सकता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रेंटल यील्ड्स कैन बी एट 5%, 6%, 7%. So this is an opportunity especially for the tier 1 investors, tier 1 city investors, जहां पे उनको रेंटल यील्ड इतनी ज्यादा नहीं मिलती हैं. तो आप ऐसे किसी प्रोडक्ट, ऐसे रियल एस्टेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो एक हाई टिकट साइज एसेट रहेगा, 50 करोड़ का, 25 करोड़ का, जिसमें आप 25 लाख रुपीज, या देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स, कोई 10,000 का भी देता है, कोई 50,000 का भी देता है. बट मैं रेकमेंड करूंगा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जहां पे थोड़ा सा एक
वेटेज आपको अच्छा मिले. So generally 25 lakh is a figure which ideally gives you a good exposure to that particular fragment. तो आप ऐसे किसी फ्रेगमेंट को परचेज कर सकते हैं जो ऐसी किसी प्रॉपर्टी, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या एक वेयरहाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, वो लैंड एक्विजिट करके उसको लीज पे दे दिया और वहां से आपको एक रेगुलर यील्ड भी आ रही है. तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जनरली ये जो इसका मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके से काम करता है कि एक कंपनी फॉर्म होती है, वो कंपनी उस लैंड को एक्विजिट करती है और उस कंपनी के शेयर होल्डर आप बनते हो बाय इन्वेस्टिंग योर मनी, एंड उस कंपनी का एक डिवेंचर आपको प्रोवाइड किया जाता है विच इंश्योर्स आपका रेगुलर जो रेंटल इनफ्लो है वो आपको डिवेंचर के इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है. एंड जो बाकी के शेयर हैं वो दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग योर ownership on that particular property through that company. So this is RERA registered. This is well regulated by RERA. This is well regulated by SEBI also. Ministry of Commerce में इसका registration भी होता है. So everything is legal. ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल काम यहाँ पे हो रहा है, बट देर आर वेरियस रूट्स. एक ऐसे चैनल बनाया जाता है जिसके थ्रू आपको जो रेंटल यील्ड्स है वो भी मिले और वैल्यूएशन का बेनिफिट भी मिले. Let me quickly show you an example of this kind of product. जैसे ये एक प्रोडक्ट है, होसूर की कोई एक प्रॉपर्टी है जिसमें शायद आप मतलब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट 25 लाख का करते हैं तो एक एवरेज यील्ड आपको मिलती है 11% की. दिस इज द रेंटल यील्ड विच यू आर एक्चुअली मेकिंग अप. अगर मैं बोलूँ यही चीज मैं आपको कंसिडर करके दूं तो हम जनरली किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देर आर वेरियस कॉस्ट इन्वॉल्व, जैसे कि मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस, ये वो फलाना, प्रॉपर्टी का अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, देन रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बार बार उसको रजिस्टर करते हैं उसके चार्जेस, वो सारी चीजों को अगर मैं कवर अप कर लूँ तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर हमें वो सारे एक्सपेंसेस का इतना बर्डन नहीं आता है. एंड इवन आफ्टर डूइंग दैट ऑल दोज एक्टिविटीज हमें 11% की यील्ड मिल रही है. और अगर मैं 4% भी वैल्यू अप्रिसिएशन पकड़ता हूँ और अगर ये 5 साल का भी प्रोडक्ट है तो मुझे 13.64% का टारगेटेड IRR मिलता है अगर मैं 4% का भी वैल्यू अप्रिसिएशन मानता हूँ. अगर वो वैल्यू अप्रिसिएशन 10% का है तो वो 10% के हिसाब से आपको रिटर्न जनरेट करके देगा. अगर 20% का है तो 20% मिलेगा. लेकिन टेकिंग एट अ बेस लेवल कि हम एक बहुत ही ऐसा सिनेरियो पकड़ रहे हैं कि भाई ज्यादा रिटर्न होगा ही नहीं, तो 4% का भी अगर मेरी प्रॉपर्टी ने रिटर्न दिया है, जो प्रॉपर्टी में आपने इसमें फ्रेगमेंट जिसका परचेज किया है, तो स्टिल यू आर अर्निंग 11% का जो फिक्स रेंटल यील्ड है वो तो फिक्स ही है, वो तो आप कमा ही रहे हो. उसके साथ 4% का एक वैल्यू अप्रिसिएशन देकर 13.64% का रिटर्न आप इसमें जनरेट कर सकते हो, कंसिडरिंग द प्रॉपर्टी गिविंग यू अ वैल्यू अप्रिसिएशन ऑफ 4%. तो इसमें टेनेंट लॉकिंग पीरियड भी प्री डिटरमाइंड होते हैं. जनरली इसमें ए ग्रेड के टेनेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के दे दिया. सो देयर आर हाई लेवल portfolio allocation is done. They try to find a good tenant for you so that these property management companies ensure they are there till the whole period. जो भी पीरियड आप जितने टाइम के लिए आपने उसको लीज पे दिया है वो उतने टाइम तक उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है, वो उस प्रॉपर्टी में ही टेनेंट रहेगा. So this is all from my side. This is all about the fragments of real estate. This is all about the alternate investment ideas. So I've shared 10 alternate investment ideas with you. That's all from me. I'm open for Q&A and all over to you, Nishant, if you want to add something. Yeah, it was a very informative, I think. By far one of the most informative session on products. क्या products hai, and I think it's really nice. So any questions we have, you can type it on the chat also. Any questions, you can unmute yourself, you can ask. Yeah, very comprehensive, Ankit ji. Thanks. Yeah. Partho ji, you can unmute yourself, sir. Sir, I have one question.
Is Yes, there yes. any platform where I can get the entire product in a particular basket? अनफॉर्चुनेटली नो, बट आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं हर एक इंडस्ट्री के, मतलब जैसे हर एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के, तो आप उस उनके थ्रू पार्टनर कर सकते हैं, बट ऐसा अभी तक तो आई डोंट, हाँ हो सकता है, देर आर फ्यू जैसे प्रोडेंट वगैरह हो गए, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शायद इनमें से 2-3 प्रोडक्ट्स कर रहे हो, तो आप इस तरीके से उनके साथ टाई अप करके ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, बट Sir, मैं, can you give me? Yeah, यस tell me, प्लीज। tell me, sir. Yeah, सो if देर आर, मतलब ये आपको हर सारे प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे तो नहीं मिल पाएंगे, बिकॉज इसके सारे प्रोवाइडर्स बहुत अलग अलग होते हैं, सो एक ही जगह पे तो okay. नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि 2-3 चीजें कोई एक तो कर ही रहा हो ऐसा। Sir, can you please give us some information regarding this? That where I can get, I mean, 2, 3 company or 4 company where I can get all the product. देखिए, आप देख सकते हैं इडलवाइज हो सकता है, इडलवाइज स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स वगैरह में काम करता है, सेकेंडरी बॉन्ड्स डिबेंचर्स में काम करता है, अनलिस्टेड शेयर स्पेस में काम करता है, तो आप वो देख सकते हैं। प्रूडेंट करता है, प्रूडेंट P2P में इन्वेस्टमेंट करवाता है, P2P सोर्स करता है। आई बिलीव एनजे वगैरह भी है, ये लोग भी काफी एग्रेसिव है। AIF, इडलवाइज AIF भी करता है, सो मोतीलाल ओसवाल AIF करते हैं, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। Okay. And LRD, in case of LRD? LRD एक ग्रिप करके है, ग्रिप इन्वेस्ट, आप वहां देख सकते हैं। क्रेडेक्स है, ये 2 कंपनीज हैं जो ग्रिप में काम कर, Credix and Grip. ग्रिप, ग्रिप GRIP, आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, ग्रिप इन्वेस्ट करके हैं, वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसमें आपको स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिल जाएंगे, आपको LRDs मिल जाएंगी, आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मिल जाएंगे, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको वहां मिल सकती हैं। Okay. And can I get your number? Because if we have some kind of problem or some kind of queries, give you a call. Yes, yes, definitely. I can share my number on the chat box only if I can share. Just Yeah, a second. definitely. Hi, yes, sir. Yeah, I've shared my number. There is one more question from Mr. Rahul. Thank you, sir. Okay, thank you so much. Thank you. So there is some question from Mr. Rahul. Okay, so for invoices discounting, जैसे मैंने बताया, Credex एक platform है, Giraffe है, then Trade Cred करके है, ये platforms available है for invoice discounting. Invoice discounting is also regulated by RBI and CB का भी उसमें कुछ intervention रहता है. So yes, they are also regulated. I hope. Okay, there is a next question by Mohit. What are the estimated returns in lease rental discounting? So ideally LRDs के अंदर 10% से लेके 15% तक के options आते हैं market में, तो depending upon the opportunities, but generally आप 10% से ऊपर ही समझे, 10-11%। जैसे मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था उसमें 11% था, so there are various opportunities, उसमें हो सकता है आपको 11% 10% का रिटर्न जनरेट हो जाए मिनिमम। Thank you, Mr. Mohit. Great. Any more questions? Okay, sorry, Ms. Shrushti, platforms where we can track MLDs. So as such, there is no common platform available for MLDs because ये काफी closed structures होते हैं, but ideally इसकी tracking होती भी नहीं, क्योंकि ये product closed होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे 2 साल का अगर MLD है तो वो 2 साल के लिए ब्लॉक हो गया, 3 साल के, तो ये जनरली ब्लॉक्ड रहते हैं। आई एम सॉरी, इज देयर एनीवन, कोई अनम्यूट? I've taken care of it. No worries. ओके, ओके। सो आप स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं आपको MLD प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, Edelweiss इज वन व्हिच इज वेरी एक्टिव, देन आनंद राठी इसमें काफी एक्टिव है। MLD सेगमेंट में आप उनके प्राइवेट वेल्थ डिपार्टमेंट से बात कर सकते हो, वो आपको ये प्रोडक्ट सोर्स करा के दे सकते हैं। देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलायंस है इसके अंदर, एंड MLDs के अंदर अबान्स है, अबान्स ब्रोकिंग करके, वो भी इसमें काफी एक्टिव है, एंड देयर आर वेरियस अदर कंपनीज जो MLDs में काफी एक्टिव हैं। Yes, you can get my presentation. I have already shared it with Nishan. Nishan can share it with you. That's absolutely not a problem. Sure. Patuji, I'll share it with you. No worries.
So any more questions we have for Ankit ji today? I think it was a lovely session, very informative. Thank you so much. And thanks Kanakji, and thanks Volatility Coaches for giving me this opportunity to speak about alternate investment ideas. It helped me a lot also. जब मैं उसकी स्टडी कर रहा था तो मुझे भी कई नई चीजें पता चली. So thanks a lot for giving me this opportunity and this topic to take. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So we will end the meeting now. Yes, thank you so much.